Okay, so now we will see a constant volume gas turbine. Okay, so the constant volume gas turbine again, as I told you in the previous case of the constant pressure कि जो थिंग हमें किसी भी हीट इंजन के बारे में अगर कोई पर्टिकुलर टर्म कांस्टेंट रख के उसका नाम दिया होगा, सो डेफिनेटली दैट टर्म ड्यूरिंग दैट टर्म हमारा हीट एडिशन प्रोसेस होता है. तो सिमिलरली हियर नेम इज इंडिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन. तो यहाँ जो हो रहा है हीट एडिशन प्रोसेस वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है. ओके, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन कि नाम के हिसाब से वी विल डिसाइड कि व्हाट इज द कंडीशन ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस. ओके, सो यहाँ एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा क्या होने वाला है, heat addition process होने वाला है. So similarly, so same point over here put it. Okay, so we will read those things one by one. So the working fluid in the gas turbine is air. Right now is same as in case of the previous. Okay, as the name indicate, heat addition process in the cycle take place at the constant volume. Definitely constant volume पे ही हमारा heat addition process होने वाला है. Okay, so here हमने जो भी process है उसका हमने mechanism यहाँ draw किया है. So first of all we will see कि क्या क्या mechanism है यहाँ available. So this is our starter motor. SM is nothing but the starter motor. C for the compressor. After the T for the turbine. FI is nothing but the fuel injector. SP is nothing but the spark plug. Those are the inlet wall. Those are this is the outlet wall. Okay, and here whatever अभी पाथ बोल देता हूँ कि पाथ कैसे फॉलो कर रहा है हमारा. So whatever the charge or whatever the working fluid are present or using for the gas turbine, that's supposed to be sucked into the compressor. Compressor develops some amount of pressure on it. Okay, and that pressurized compressed air are feed into our this thing called as a combustion chamber. Okay, it is called as a CC or combustion chamber. So inside the combustion chamber, the before entering to the combustion chamber, there is a wall located over here. This is the inlet wall, and to escape out from the combustion chamber, there is a one another wall is located, that is called as the outlet wall. Okay, so in case of the constant pressure gas turbine, those walls are absent. Okay, those walls are completely not there. But in case of the constant volume gas turbine, those walls are present over here. So because of presence of those walls only, the cycle or the classification come here in case of the gas turbine. Okay, whether it is a constant pressure or whether it is a constant volume, just because of those walls. Okay, if wall was not there before the combustion chamber and after the combustion chamber, if wall was not there, then definitely the cycle will be our constant pressure gas turbine. And if wall present over there, then you can say it is a constant volume gas turbine. अभी इससे डिफरेंस क्या होता है, दैट वी विल सी कि जो भी कंप्रेसर है हमारा वो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है एयर सक कर रहा है एंड आगे भेज रहा है. ओके, सो व्हेनेवर कंप्रेसर आर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड जो भी एयर है वो यहाँ रश करेगा, एंड जैसे ही वॉल ओपन होने वाला है हमारा जो भी एयर है वो यहाँ फिल हो जाएगा कंबशन चेम्बर में. अप टू द सर्टेन एक्सटेंट, जब तक वॉल ओपन है तब तक कंबशन चेम्बर फिल्ड होता रहेगा. सो दैट विल बी अ कांस्टेंट वॉल्यूम कि इतना ही वॉल्यूम है, इतना ही वॉल्यूम में हमें अब क्या करना है, चार्ज फिल करना है. और इतने वॉल्यूम जैसे ही फिल्ड हो गया, आफ्टर दैट दिस थिंग जो वॉल है हमारा वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एंड नो फर्दर एयर विल अलाउ टू एंटर इनसाइड द कंबशन चेम्बर. सो उस टाइम भी हमारा कंप्रेसर घूमता रहेगा, बट जो वॉल है वो ओपन नहीं रहेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज द चांसेस ऑफ कि यहाँ बहुत सारा फ्लूइड आके रश करेगा. सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दिस इनलेट वॉल इज सो इंस्टेंटेनियस, विद इन अ सेकेंड, मिली सेकेंड वो 100 and 200 टाइम्स ओपन क्लोज होता है. सो दैट इज नॉट अ बिग इशू. अगर वैसा इशू हो रहा है, सो इन द कंप्रेसर वेस्ट गेट इज प्रोवाइडेड. ओके, so that through that waste gate जो rush होने वाला air है, that will be a escape to the atmosphere. Okay, so जो भी inlet wall है वो यहाँ opening and closing का काम करता है in order to control that volume कि ये volume जब तक भरता है तब तक ये वॉल ओपन रहेगा. जैसे ही वॉल्यूम फिल्ड हो गया वॉल क्लोज हो जाएगा. जैसे ही कंप्रेस्ड एयर कम्स इनटू द कंबशन चेम्बर, फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट हो जाता है. फ्यूल इंजेक्शन जैसे ही आता है, चार्ज में कंबस्टेबल चार्ज बन जाएगा, एंड टू हैव अ कंबशन ऑफ दैट चार्ज, sparkler will be ignite. And जैसे ही combustion होगा, the outlet will get open and all the expansion
of those combusted charge will be allowed to have on the turbine. Okay, so ये turbine का जो blade रहेगा वो rotate होगा on the same shaft. If you notice a compressor also mounted. Okay, so turbine जो भी power develop करेगा उसमें few amount of power is transferred to the compressor to क्या बोलते हैं further air compress करने के लिए, and some amount of power is going to the generator जो यहाँ की लगा है generator. Okay, in order to develop electricity. Once expansion is completed, all the exhaust जो भी बचा है combustion का, that will enter to the atmosphere. Okay, and that is called as a heat rejection process. अगर हम इसको state को अगर हम नाम दें, so that will be a 1, that will be a 2, this will be a 3 and this will be a 4. So 4 to 1 जो भी हो रहा है heat rejection हो रहा है, but कहाँ heat rejection हो रहा है? Into the atmosphere. Okay, so the 4 to 1 is a heat rejection, that is a constant pressure heat rejection, and the जो भी हमारा combustion हो रहा है, that will be a constant वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस. अगर इसका हम साइकिल निकालने जाए पीवी एंड टीएस साइकिल, so that will be like that. पीवी साइकिल हम निकालते हैं, इसका हीट एडिशन हमारा कहाँ हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे. so ये जो हमारा लाइन होगा इस तरह का, एंड हमारा हीट रिजेक्शन 4 to 1 कहाँ हो रहा है? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो चेंज नहीं होने वाला, so that will be a constant, sorry, this the heat addition process is a constant volume, so that will be a straight line. ओके, एंड द जो भी 4 to 1 है जो वो हमारा क्या हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर लाइन. सो दैट विल बी लाइक दिस, इस तरह, इस तरीके से हमारा ये साइकिल कुछ रहेगा. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. बट देयर इज नो बुक इन विच यू कैन फाउंड द सच टाइप ऑफ पीवी एंड टीएस डायग्राम. जो जहाँ भी आप जो भी बुक आप रेफर करोगे, जैसे कि बड़े बड़े ऑथर के बुक है, बना जो एस बंसल है, या दूसरे कुछ बुक्स है, अगर आप वो रेफर करोगे, राजपूत रेफर करोगे, खुरमी आप रेफर करोगे, तो यू विल फाउंड कि उन्होंने कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन के लिए पीवीटीएस प्लॉट नहीं दिया है. यू विल फाउंड ओनली पीवीटीएस प्लॉट फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन, जो कि ये रहेगा हमारा. बट इन केस ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन there is no any PVTS plot mentioned over in any book. They are only showing you such type of mechanism. Okay, this mechanism also present over here only in case of the constant pressure gas turbine only the difference ये जो wall है वो it is not there. Okay, and constant volume gas turbine के लिए PVTS plot नहीं दिया होगा. So अगर वो है तो इस तरह से वो हमारा PVTS plot हमारा आने वाला, you can draw it. Okay, so difference क्या है दोनों प्लॉट में? PV and TS प्लॉट जो भी है हमारा ओपन साइकिल एंड गैस, सॉरी, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम में. तो ये जो है हीट एडिशन प्रोसेस यहाँ क्या हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है. और जो हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा है वो सेम है, जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर में भी हमारा क्या हो रहा था? कांस्टेंट प्रेशर पे ही हो रहा था. ये 4 to 1 हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल के दिखाता हूँ. यही प्रेशर एंड वॉल्यूम, दिस विल बी फॉर द कांस्टेंट प्रेशर. दोनों प्रोसेस हमारा क्या हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे ही हो रहा है. पीवी प्लॉट. Okay, so this is 1, this is 2, this is 3 and this is a 4. So same way in case of the constant pressure and in case of the constant volume, दोनों जगह हमारा जो डिफरेंस अगर हम देखें, सो यहाँ हीट एडिशन प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम 2 to 3 एंड कुछ गलत हो गया शायद से, जस्ट अ मिनट. It should be like this. Okay, इस तरह होना चाहिए. 1 2 3 4. ओके, जस्ट समझ लो, यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, ओवर राइट हो गया. ओके, सो कांस्टेंट प्रेशर. ओके, ये जो प्रोसेस है 1 to 4, यहाँ भी 1 to 4 मैच होता है हीट रिजेक्शन. सिर्फ हमारा जो हीट एडिशन है यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है 2 to 3, और यहाँ है हमारा जो भी है 2 to 3, दैट विल बी अ कांस्टेंट प्रेशर. यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन द कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टरबाइन. ओके, आफ्टर दैट अनदर टर्म है हमारा क्लोज साइकिल गैस टरबाइन एंड द ओपन साइकिल गैस टरबाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
ये कौन से बेसिस पे होता है? क्लोज साइकिल, अभी हमने जो इसके पहले देखा गैस टर्बाइन, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या है कि हमारा हीट एडिशन प्रोसेस कौन से केस में हो रहा है, क्या कांस्टेंट रख के हो रहा है? हमारा प्रेशर कांस्टेंट रख के हमारा हीट एडिशन प्रोसेस हो रहा है, या हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हीट एडिशन हो रहा है? इसके बेस पे हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस टर्बाइन एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टर्बाइन। बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली हम जो कांस्टेंट प्रेशर गैस टर्बाइन है उसको हम हमने नाम दिया है दैट इज अ जूल साइकिल और द ब्रिटन साइकिल। ओके, but in case of the constant volume, there is not such name is present over here. Okay, only they are term it as a constant volume gas turbine, and no there is no any or we can say 90 to 99% जो भी गैस टर्बाइन हम यूज करते हैं that is only a constant pressure gas turbine जो कि ब्रिटन साइकिल पे चलता है। ओके, बिकॉज इफ यू कंपेयर कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि इन केस ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम जो भी है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टर्बाइन है, उसमें क्या होता है कि इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व अवेलेबल है। सो ये जो भी हीट एडिशन प्रोसेस पावर जनरेशन प्रोसेस जो होने वाला है यहाँ पल्सेस में होने वाला है। मतलब जब तक ये इनलेट वॉल्व ओपन है ये चार्ज भरेगा, उसके बाद कंबशन होगा, उसके बाद एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन होके एक्सपांशन होगा। बट इन बिटवीन आफ्टर एक बार एक्सपांशन हो गया, आफ्टर दैट नेक्स्ट एक्सपांशन साइकिल जब तक नहीं होता तब तक टरबाइन को वेट करना पड़ेगा। सो जो भी पावर जनरेशन यहाँ होने वाला है दैट विल बी इन पल्सेस। एक पल्स आया पावर जनरेशन एक्सपांशन का, आफ्टर सम सेकेंड और मिली सेकेंड नेक्स्ट पल्स विल ऑफ एक्सपांशन विल बी देयर। सो कांस्टेंट वेलोसिटी टू जनरेटर, कांस्टेंट आरपीएम जो है हमारा जो जनरेटर हम यहाँ फिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए, उसको कांस्टेंट आरपीएम नहीं रहेगा, दैट विल बी कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग। सो बड़ा फ्लाईव्हील लगेगा वहाँ, वो फ्लक्चुएशन अवॉइड करने के लिए अगेन टू हैंडल द इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील we will require the some amount of turbine work get wasted over here. Okay, so that's when 90 to 99% जो भी टर्बाइन हम यूज करते हैं that is a constant pressure only, constant volume हम यूज नहीं करते। Okay, in case of the rocket, in case of the aviation, in case of the military और in case of the electricity generation also, जो हम यूज करते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर वाला ही यूज करते हैं, ये वॉल्स नहीं रहते उधर। ओके, जैसे ही हम ये वॉल्स निकाल देंगे और प्रोसेस जो हो जाएगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि जो भी एयर एक कंप्रेसर कंप्रेस करेगा, ये एक्सेल फ्लो कंप्रेसर है, जो भी एक्सेल फ्लो कंप्रेसर एयर कंप्रेस करेगा दैट विल कंटिन्यूअसली एंट्रिंग इनटू द कंबशन चेंबर एंड कंटिन्यूअसली फ्यूल स्प्रे रहेगा तो कंटिन्यूअसली कंबशन होता रहेगा एंड दैट कंटिन्यूअस एक्सपांशन स्ट्रोक विल बी आल्सो will be there inside the turbine, and whatever the power generation will have a continuous flow or continuous rpm, so no fluctuation in rpm is there till until and unless हम यहाँ से amount of fuel vary नहीं करेंगे तब तक। ओके, क्योंकि amount of fuel vary करेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर है वो चेंज हो जाएगा टर्बाइन के ऊपर एक्सपांड होने वाला, सो डेफिनेटली फ्लक्चुएशन इन rpm will be there। सो ये जो प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर गैस टर्बाइन प्रोसेस, वो दैट इज अ कंटिन्यूअस, एंड जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस टर्बाइन प्रोसेस है दैट इज अ पल्सेस फॉर्म में। सो जो भी है 90 to 99% गैस टर्बाइन हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए, दैट इज नथिंग बट अ कांस्टेंट प्रेशर गैस टर्बाइन। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। यू कैन से कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट एडिशन प्रोसेस हम गैस टर्बाइन को कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस एंड द कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी अनदर क्लासिफिकेशन, जो भी बेसिक क्लासिफिकेशन था गैस टर्बाइन का, ओपन साइकिल है या क्लोज साइकिल है। ओके, सो द क्लोज साइकिल एंड ओपन साइकिल गैस टर्बाइन हम इसके हिसाब से करते हैं कि हीट रिजेक्शन कहाँ हो रहा है, हीट रिजेक्शन को एटमॉस्फेयर में हो रहा है या हीट रिजेक्शन सब सिस्टम के साथ हो रहा है। ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखो, मैं जो बोल रहा हूँ कि हीट रिजेक्शन प्रोसेस किसके साथ हो रहा है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस एटमॉस्फेयर के साथ हो रहा है या हीट रिजेक्शन प्रोसेस एक सब सिस्टम के साथ हो रहा है। ऑन दैट बेसिस वी कैन say whether it is a closed cycle gas turbine or it is a open cycle gas turbine। Okay, so we will read one by one whatever the point quoted over here। Okay, so the closed cycle gas turbine, the first point is written over, that is in this type of gas turbine subsystem are connected to each other in such a way working fluid are not escaping from system or not entering to the atmosphere। Okay, what they say कि जो भी सब सिस्टम है, हमने जो भी सब सिस्टम देखा एट वेरी अर्ली ऑफ दिस लेक्चर कि जो भी है हमारा
कंप्रेसर है, हमारा कंबशन चेम्बर है, हमारा टरबाइन है, ओके जो भी हमारे सब सिस्टम है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सच वे कि जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड हम इसमें यूज कर रहे हैं दैट वर्किंग फ्लूइड मे बी एनी गैस, ओके वी विल सी कि ये जो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है इसमें हम किसी भी तरह का गैस यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली एयर, एयर के साथ दूसरे गैस भी यूज कर सकते हैं जो इनर्ट है, जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ओके केमिकल रिएक्शन नहीं करते, इसके थर्मली स्टेबल रहते हैं, तो वैसे गैस भी हम इसमें यूज कर सकते हैं क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में, ओके सो व्हाट दे सेड कि इट इज सच अ साइकिल इन विच अ सब सिस्टम आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सच वे कि जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड है दैट विल नॉट एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, ओके सो जो हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा है वो एटमॉस्फेयर के साथ नहीं होगा, ये यहाँ हमें क्लियर होता है, ओके द क्लोज साइकिल गैस टरबाइन आर सच सिस्टम इन विच in which the heat rejection process are not take place with atmosphere, it will take place with the subsystem, okay and whatever the working fluid are present in the system are not entering to the atmosphere, it is not escaping from the system, that is the main thing you have to understand over here. Now next thing is the same working fluid is used cycle by cycle in the same system, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारा वर्किंग फ्लूइड है दैट इज नॉट एंटरिंग टू द एटमॉस्फेयर, तो अगर वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा है तो वो कहाँ जाएगा, सो द सेम वर्किंग फ्लूइड वी आर सपोज टू यूज और रीयूज for the further cycles in the system only, okay so this is the thing we have to कंसिडर ओवर हियर कि जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो साइकिल बाय साइकिल वही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला बिकॉज इट इज नॉट एंटरिंग टू द एटमॉस्फेयर, इट इज नॉट एस्केपिंग, ओके नाउ सेकंड थिंग हिंस इट इज कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टम, दैट्स व्हाई ओके बिकॉज जो भी सिस्टम है जैसे कि हमने वेरी स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर में देखा था कंट्रोल मास सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड द क्लोज सिस्टम, हमने एक ओपन सिस्टम देखा था टाइप ऑफ सिस्टम्स में कि ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता, वर्किंग फ्लूइड एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करता, तो सिमिलरली दिस इज अ क्लोज सिस्टम जिसमें हम मास है, हमारा वर्किंग फ्लूइड है वो एटमॉस्फेयर में अलाउ नहीं करेंगे एंटर होने के लिए, वही वर्किंग फ्लूइड हम साइकिल बाय साइकिल यूज करेंगे, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ क्लोज सिस्टम. नाउ नेक्स्ट लाइन है टिल डेट एयर ओनली हैज बीन यूज्ड एज अ वर्किंग मीडियम. अभी ये जो क्लोज सिस्टम है, क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है, इसमें हम क्या करते हैं ओनली एयर फिलहाल यूज करते हैं टिल डेट, एंड जो भी अदर जो ये है क्या बोलते हैं अदर गैसेस है जो कि मैंने बोला था अदर इनर्ट गैसेस हीलियम एंड एर्गॉन नाइट्रोजन, जो भी अदर गैसेस है उनके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है, सो इट इज नॉट लाइक दैट कि ओनली वी कैन यूज अ एयर, वी कैन यूज अ कार्बन डाइऑक्साइड, वी कैन यूज एर्गॉन नाइट्रोजन एंड अदर नॉन रिएक्टिव गैसेस हम इसमें यूज कर सकते हैं, okay so air use karna it is not necessary, okay now we will see the how the cycle is take place, how the working process is take place accordance with the PV and TS plot over here, okay and as previously I told you कि जितना भी gas turbine है that is maximum run on a Brayton cycle or the constant pressure heat addition process only, so that's why I am presenting over here only a constant pressure or Brayton cycle, okay सो एग्जाम में भी यही है हमारा कांस्टेंट प्रेशर और गैस टरबाइन ही कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन ही रहेगा इन कोऑर्डिनेशन विद दिस सिस्टम, ओके सो वी विल सी वन बाय वन हाउ इट विल वर्क द क्लोज साइकिल गैस टरबाइन. जैसे कि हमने देखा था कि हमारा जो भी क्लोज साइकिल एंड ओपन साइकिल का क्लासिफिकेशन था वहाँ 4 पार्ट्स थे हमारे क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के लिए, okay so those are the 4 part which is connected in this order, okay so first of all compressor is there, after the compressor heater is there, okay heater and combustor जो आपका concept था मैंने बोला था term is different but work is same but working principle is different, okay सो हीटर एंड कंबस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल अलग है बट काम एक ही है उनका, ओके सो यहाँ हम हीटर यूज कर रहे हैं, आफ्टर दैट टरबाइन यूज कर रहे हैं और टरबाइन से जो बाहर निकल रहा है हमारा expanded gases that will not allow to enter to atmosphere, again it will connect it to the another subsystem, okay that is called as a cooler, okay that is called as a cooler, so उसको हमने connect कर दिया है and from the cooler it is again going to the compressor, so how it will take place we will see further. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंप्रेसर है वो क्या करेगा, हम कंप्रेसर को स्टार्टर मोटर कनेक्टेड है, स्टार्टर मोटर लाइक हमारे ऑटोमोबाइल्स को जो कनेक्टेड होते हैं वैसे स्टार्टर मोटर रहेगा हमारे सिस्टम को,
स्टार्टर मोटर उसी शाफ्ट पे है जिस शाफ्ट पे कंप्रेसर है, और कंप्रेसर उसी शाफ्ट पे है जिस शाफ्ट पे टरबाइन है, और हमारा जनरेटर उसी शाफ्ट पे जिस टाइप पे ये बचे हुए तीन सब सिस्टम्स है, मतलब स्टार्टर, कंप्रेसर, टरबाइन एंड जनरेटर, ऑल दोज आर लाई ऑन अ सेम शाफ्ट। ओके, सो टरबाइन जो भी काम करेगा, जो भी वर्क डेवलप करेगा, वो कंप्रेसर को भी जाएगा, वो जनरेटर को भी जाएगा। ओके, एंड जैसे ही एक बार हमारा सिस्टम स्टार्ट हो गया तो स्टार्टर स्टैंड बाय पे चला जाता है। ओके, इट इज ओनली हैव वर्क टू स्टार्ट द सिस्टम, इनिशिएट द सिस्टम। ओके, so first of all the compressor will start to compress the fluid, एयर और गैसेस जो भी है अवेलेबल, वहाँ जो भी गैस हम यूज कर रहे हैं, आर्गन यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन यूज कर रहे हैं, एंड दैट compressed एयर और द गैस will enter into the heater। ओके, हीटर में क्या हो रहा है, we can see two lines over here। यहाँ से एक हॉट फ्लूइड जाएगा अंदर और वो कोल्ड होके बाहर निकलेगा। ओके, सो हॉट फ्लूइड अंदर जा रहा है, कोल्ड फ्लूइड बाहर निकल रहा है। ये जो भी है वो हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड भेजने का एक दूसरा सब सिस्टम रहेगा। हो सकता है फर्नेस होता है, फर्नेस के जो फ्लू गैसेस होते हैं वो हीटेड होते हैं, सो दैट हॉट फ्लू गैसेस कैन आल्सो एंटर थ्रू दिस वे एंड एस्केप थ्रू दिस वे, एंड हमारा जो भी कंप्रेस किया हुआ गैस है विल एंटर थ्रू दिस वे एंड एस्केप थ्रू दिस वे, बट इन बिटवीन इनसाइड द हीटर दे आर कम्युनिकेटिंग, नॉट डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, मतलब दे आर हैविंग अ सरफेस कांटेक्ट। ये जो पाइप है और ये जो पाइप है, इनका सरफेस कांटेक्ट रहेगा, उसके हिसाब से इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा, एंड बिकॉज ऑफ द हीट एक्सचेंज whatever the compressed air passing through heater will have a heat addition process। okay, performing a heat addition process, so 2 to 3 प्रोसेस में हमारा जो भी गैस रहेगा कंप्रेस किया हुआ दैट गेट हीटेड, एंड उसका पोटेंशियल जो थर्मल एनर्जी उसमें, हीट एनर्जी उसमें स्टोर होगा, दैट विल गेट enhanced, and such a high pressure high temperature gas will allow to enter inside the turbine। वैसे ही जो टर्बाइन में जाने वाला है वो एक्सपांड हो जाएगा, and during the process 3 to 4 that is the isentropic expansion, during the process 1 to 2 that is the isentropic compression, so 3 to 4 isentropic expansion होगा, and that 4 to 1 जो भी गैस एक्सपांड हो चुका है that will enter to the cooler, again inside the cooler there will be a heat exchange, it's as same as the heater। okay, एट सेम एज द हीटर क्या क्या हो रहा है, यहाँ से कोल्ड वाटर एंटर होगा। ओके, कोल्ड वाटर एंटर होने वाला है और वो वाटर हॉट होके बाहर निकलने वाला है। ओके, सो यहाँ से कोल्ड वाटर जाएगा, यहाँ से हॉट वाटर निकलेगा बाहर। सो जो भी टर्बाइन का जो आफ्टर एक्सपांशन गैसेस अवेलेबल है एट द स्टेट 4 दैट विल एंटर टू द कूलर, दैट विल बी अ हॉट somewhat, and once it escaping through this cooler section that will be a colder somewhat। okay, as compared to this point it will be a cool over here, and that cold air or cold gas we are allowed to further compress inside the compressor, and again this cycle get continue, and whatever the work done by the turbine usko hum turbine work bolte hain, the some amount of turbine work will going to the compressor, and some amount of turbine work is entering to the generator। okay, in order to develop the electricity, so हम बोल सकते हैं W turbine will equal to WC, that is work of compressor plus work of the generator। so this will be the equation for the turbine work। हम बोल सकते बैलेंस करते हैं हम उस इक्वेशन को। okay, so work of turbine is equal to work of compressor plus work of the generator। now we'll see the PV-TS plot over here। what is a PV and TS plot is not different like a Breton cycle, because we are using a Breton cycle as it is over here, so it is same as Breton cycle we have studied previously। so same PV and TS plot plotted over here। 1 to 2 process is our isentropic compression process which is take place inside the axial flow compressor। okay, rotary type of axial flow compressor। so 1 to 2 process is the isentropic compression is take place। आफ्टर दैट 2 to 3 इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस, मतलब ये जो हीटर के अंदर जो भी हमारा हीट एडिशन हो रहा है, ओके, सो दैट विल बी carried out at the constant pressure only। okay, so this is the thing we have to notice over here, that 2 to 3 process is the constant pressure heat addition process। after that 3 to 4 it is a process take place inside the turbine। okay, that will be a isentropic expansion।
So this nature is isentropic expansion, and 4 to 1 again we are not allowed to escape this gas into atmosphere. So whatever the heat rejection process is take place with the subsystem, okay, not with the atmosphere. Okay, so the process 4 to 1 is the continuous over here, which is closing the cycle. This loop is closed due to the 4 to 1 process. Okay, अगर ये एटमॉस्फेयर में जाता था तो ये लूप क्लोज नहीं होता था, इट विल बी अ डॉटेड लाइन, बिकॉज एटमॉस्फेयर में जा रहा है हमारा एयर, किसी सब सिस्टम को नहीं जा रहा है. सो दैट्स व्हाई this is a continuous line 4 to 1 process. Okay, so through cooler it will get cool at the constant pressure. So अगर हम TS plot पे हमें plot करना same वे which I have seen previously, 1 to 2 is the isentropic compression, 1 to 2 is the isentropic compression, 2 to 3 is the constant pressure heat addition process. Same way 2 to 3 is constant pressure, P is the constant. After that 3 to 4 is our isentropic expansion. It's a straight line coming down with the vertical nature, and it drop at the constant pressure line, that is P is equal to constant. 4 to 1 is the other process, that is constant heat rejection process. Okay, so this is our PV and TS plot which we have to understand in case of the closed cycle gas turbine. Okay, so I hope you have understood this thing.